السلام علیکم قدر و رات شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. اور ناظرین آج موضوع گفتگو ہوگا لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی ہوئی صورتحال, چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں اور اسٹریٹ کرائم. جنید سلیم صاحب, اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کے اسٹوڈیو میں آیا ہوں. یقین مانے آپ سے زیادہ ہم لوگ پریشان ہیں. ہم وہ وزادار ڈاکو جو پرانے وقتوں میں ڈکیتی کیا کرتے تھے, آج کے یہ اسٹریٹ کرائم کو دیکھ کے ہم بھی شرمندہ ہو گئے ہوئے. اچھا, یقین مانے کہیں ڈکیتی کرنے جانا تو باقاعدہ اس کا بندوبست کرنا, وردی سلوانی, پلاننگ کرنی, پہلے جا کے ادھر کا چکر وکر لگا کے آنا کہ کس طرف سے جانا ہے, کہاں سے جانا ہے, گھر میں کتنے فرد ہوں گے, کس کو کچھ کہنا ہے, کس کو کچھ نہیں کہنا. وہ بھی ڈکیتی یہ بھی ڈکیتی. انہیں جی کام بے شک ایک ہی ہے, مگر کو وزاداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم ڈکیتی کرنے جاتے تھے, کتیوں پہنوں کو دیکھ کے ہم کہتے تھے کہ باجی ذرا ادھر ہو جاؤ, اسی ڈکیتی کرنی ہے. آپ تو دیکھیں, آپ اپنے بیوی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ, رستے میں یہ آوارہ گرد ڈاکو کھڑے ہوتے ہیں ہر نکر پہ. پہلے ہی آپ بیوی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, دہشت کے ساتھ موٹر سائیکل کانپ رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کے سامنے اگر آپ کے کو کان پٹی کے اوپر بندوق رکھ دے, آپ کا کامبا زیادہ بڑھ جائے, ساری زندگی بیوی ریکارڈ لگاتی رہتی ہے. آپ جب بھی بیوی کے سامنے تھوڑا سا روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آگے سے تانا دے دیتی ہے, وہ جا کام کر جا کے 4.25 فٹ دا ڈاکو سیدھے تو وائبریشن دے لگ گیا سے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کام ڈکیتی کا ہی ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں بچے, ہم بھی ڈکیتی کا ہی کام کرتے تھے, مگر تھوڑا بہت رکھ رکھاؤ, کوئی اصول کو وزاداری ضرور ہوتی تھی. آپ تو یہ ناز سمجھ آوارہ گرد بدتمیز لڑکے پستولے پکڑ کے گلیوں میں دوڑتے پھرتے. کون ہو تم؟ ڈاکو! ادھر آئے. جی سر. جی چلو سے باؤ جائے, چلو سے باؤ. استاد میں بھاگ رہا ہوں. ادھر آئے, ادھر آئے. نہیں پانتا رات بڑا پارا, آواز بڑی آئی. اور یار ادھر آگے میں کچھ نہیں کہتا, ادھر آ. اچھا ادھر آ, ادھر آ یار, ادھر پکڑا پستول. چلو ادھر بیٹھو جائے. بیٹھو یار, بیٹھو بیٹھو. یہ دیکھو نا ذرا جنید صاحب, یہ ہے آج کل کے یہ سٹریٹ کرائم کرنے والے لڑکے. لگتا ہی نہیں ڈاکو ہے, لگتا ہے یو پی ایس ٹھیک کرنے آئے. چلو بیٹھ جاؤ یار. سر آپ کو پتا ہے کہ کیمرے آن ہیں, ورنہ آپ جیسے لوگ تو ہماری گن دیکھ کے اپنا پرس بھی دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں سر یہ 5,000 اس جیب میں بھی ہے. جنید صاحب اب کیا ویلیو رہ گئی ہے ڈکیتیوں کی, آپ ذرا یہ دیکھیں ان لڑکوں کو. ایسے بے وقوف 24 گھنٹے یہ لوگ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں. ایمان سے ٹینشن کریٹ کر دی ہے ان لوگوں نے. جتنی دیر تک ہم ڈکیتی کا کام کرتے رہے ہیں نا جی, اتنی ٹینشن نہیں تھی ہوتی. وہ سال 6 مہینے کے بعد کہیں ایک جگہ ڈکیتی ہو جاتی تھی, اور اس وقت بھی ڈکیتی میں کوئی شرمندگی نہیں تھی ہوتی. ہاں ظلم و ستم ہوتا تھا, مگر شرمندگی بے حیائی نہیں تھی ہوتی. دہشت تو پورے علاقے میں پھیلا دیتے تھے آپ لوگ بھی. وہ ٹھیک ہے باؤ جی, مگر سال میں کہیں ایک دیاری ڈکیتی ہوتی تھی. اب تو پورا سال 12 مہینے روز 8 پیر ڈکیتی ختم ہی نہیں ہو رہی. ایسے یہ بے خوف اور ان چک بچے آ گئے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا شریف آدمی کون اور ڈاکو کون ہے. گلی میں سے موٹر سائیکل میں گزرتے ہوئے ڈکیتی کر کے نکل جاتے. ہمارے دور میں گھوڑے پہ بیٹھ کے آتے تھے, لوگ دور سے ہی سمجھ جاتے تھے یا چوبدار ہے یا ڈاکو ہے, وہ سجے کھبے ہو جاتے تھے. یہ لڑکے تو موٹر سائیکلوں پہ چڑھ کے گلیوں میں گھسے ہوئے. ہوتے آہو سمارٹ آدمی اپنے حلی دے مطابق موٹر سائیکل دے بہنے این نکل جانے, این نکل جانے. تینوں موٹر سائیکل دے بٹھایا ہوئے تو کی لگے گا تو؟ ڈاکو لگے گا نہیں, لگے گا دودھ دینے جا رہا ہے. بیٹا ڈاکو گھوڑے پہ ہی سجتا ہے. یہ آج کل کے ڈاکوؤں کو گھوڑے پہ بٹھا دے, لگے گا مری سیر کرنے آئے ہوئے. استاد 5 سال ہو گئے مجھے ڈاکے مارتے ہوئے, کب دہشت بنے گی میری؟
करारियों वाले खंजर से इधर टक लगवाओ। लो गरारियां वाला खंजर कड़ 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 जिन्हों खोल दे डाकू फड़े दस। क्यों जी सर जी, खौफजदा डाकू मॉडर्न, ये तो बेचारे कहीं डकैती करने जाए, साथ वाले घर में शादी हो उधर डांस भी कर आते। ये पुराने जमाने दे शरीफ डाकू ये तो किते डाका मारन जांदे सी ना किसे घर उत्ते शरीफ फैमिली निकल आउंदी सी ते बेटी दा रिश्ता कर आउंदे सी। हाय हाय, और ये आजकल के बेसब्रे बेअसूले डाकू अगर अल्लाह अल्लाह करके कहीं रिश्ता हो ही जाए, गलती से अपने ससुराल में डाका मार के रिश्ता तोड़वा लेते। उस्ताद बगैर गन के फायरिंग कर रहे हैं हम। पता चला कि बगैर गन के कर रहे हैं, फिर गिरे हम। ओ सर जी, बेअसूले बेसमझ एवं शौकिया डाकू बने हुए, ड्रामे और फिल्में देख देख के इन्होंने पिस्तौलें उठा ली। आप तारीख उठा के देख ले, हमने तो किसी ना किसी जुल्म के खिलाफ बंदूक उठाई है, और फिर डकैती अपने लिए ही नहीं की, गरीबों के लिए की है। ये आजकल के लड़के तो जनाब एवं शौकिया डाकू हैं। पर्दा डालने वाली बातें हैं, जुर्म ये भी था जुर्म ये भी है, और दोनों का अंजाम मौत है, हलाकत है, खाम खा पर्दे डाल रहे हो। और भाई जी हम भी कोई शौकिया डाकू नहीं बने, मजबूरी के तहत डाकू बने। हाँ, हमको डाकू डाकू खेल नहीं रहे। आपकी क्या मजबूरी थी? मोबाइल खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर सोचा जिस जिसके पास मोबाइल है सब छीन लो। अच्छा, आप भी मोबाइल की वजह से डाकू बने? जनाब साहब मेरे थे 5 मोबाइल खोए ने नहीं छेवा खोन आया मेरे को है ही नहीं सी, मैं कहा चलो रल के खोने फिर। ये देखे ना जनाब साहब, बेरहम और एक दूसरे के साथ ही बदीद, एक दूसरे को लौट रहे। हम लोगों में रहम होता था, हमदर्दी होती थी, दिल मोम होते थे हमारे। हम तो ईमान से डकैती करने जाते थे तो रहम खा के छोड़ के भी आ जाते थे। अच्छा। मैं एक दफा ये नारोवाल के पास डकैती करने गया हूँ, चौधरी थे बड़े तगड़े, मुझे मुखबरी हुई कि उनके घर में बड़ा सोना है। लो जी, मैं दीवार फलान के घुस गया उनके घर, जाके मैंने चौधरी को उठा लिया, मैंने कहा उठो चौधरी, सोना कहाँ है? वो चौधरी ने मुझे बताना शुरू किया, कहता जी ये लोया लिया। मैं कहा बस कर, अब मैं कहा ना जोर ला रहने दे भाई, मैं वापस आ गया। अच्छा। और मैंने कहा पिंड जाके क्या बताऊंगा, थत्थे को लौटा है। सही गल है, ऐसे बंदे नु की लुटना जेड़ा को गाल भी नहीं कर सकता। आप में और इनमें एक ये भी फर्क था ना कि इनके साथ पुलिस नहीं मिली होती थी, लेकिन ज्यादातर मामलात में आपके साथ तो पुलिस मिली होती है। वो सर ऐसे नहीं मिली होती, मिली भगत होती है तो मिली होती है। देखे ना जरा, ये ऐसे ही है कि बंदा पैसे पूसे दे के भी ये कर ले, फिटे मुंह ऐसे सर्टिफिकेट का। जिन्हें सब डकैती हमारे दौर में होती थी, पीछे पुलिसें चढ़ जाती थी, घोड़े मगर लग जाते थे, जीपें दौड़ रही होती थी पीछे, 3-3 4-4 दिन पुलिस को पीछे दौड़ाना हमने। जुनैद साहब मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक दफा मैंने 5-6 दिन पुलिस को पीछे दौड़ाया। एक हवालदार होता था अहमदीन, बड़ा उसका नाम था, मैंने उसको देखा नहीं था हुआ, बस उसने यही कहा कि तगड़ा हो जाए अहमदीन ने तेन छड़ना नहीं। और मैं क्या फिर देखी जाएगी अहमदीन ने की है। मैंने उसको दौड़ाया, फिर को 5वें-6वें दिन उस अहमदीन हवालदार ने मुझे चोरी सरफराज के पट्टे के पीछे घेर लिया। लो जी, घोड़ा जब उसने ऊपर मेरे चढ़ा दिया पूरा, तो मैंने हाथ खड़े कर दिया, बंदूक मैंने फेंक दी। अच्छा। लो जी, जब वो अहमदीन घोड़े से नीचे उतरा तो वो लंगड़ा। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरी गिरफ्तारी पे लुडियां डाल रहा है। मैंने फिर गौर किया तो वो वाकई लंगड़ा था। जुनैद साहब आप यकीन मानेंगे कि मैंने उसी वक्त पहले तो उससे माफी मांगी है, फिर मैंने हाथ आगे कर दिए, मैं कहा लाए हाथ खड़िया। जुनैद साहब इतना मैं शर्मिंदा हुआ, मैंने कहा जालिमा 5-6 दिन पहले 10 दा वो एक लात मेरे मगर लगा रही है, और मैं पिंड जाके की दसांगा, मैं लंगड़े दियां दौड़ा लो आई। लो जी जुनैद साहब, वो अहमदीन लंगड़ा जब घोड़े पे बैठने लगा तो उसने मेरी हथकड़ी खोल दी। और मैंने कहा क्या हुआ, कोई गलती हो गई है बाबा, बता तो सही। कहता तेरे मैंने हाथ बन दिए हैं, अब घोड़े पे मुझे तुम्हारा प्यो बिठाएगा।
कहता मेरी तो टांग पे फैर बजे हुए हैं, मैं तो लंगड़ा हूँ, मैं तो घोड़े पे छाल मार के इधर से चढ़ूं तो उधर गिर जाता हूँ, उधर से छाल मार के चढ़ूं तो इधर गिर जाता हूँ। कजिन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। और भाई मकसद ये नहीं है कि पहले वक्तों के डाकुओं का आज के डाकुओं से मुवाजना किया जाए, मकसद ये है कि ये जानने की कोशिश की जाए कि आज राजधानी और डकैती की वारदातें इस कदर फैल क्यों गई हैं और ये क्यों महसूस होता है कि कानून के हाथ बंधे हुए हैं। सर जी आपको बता तो दिया है, बिल्कुल सिर्फ यही वजह है कि हमारे वक्तों में जब डकैती होती थी FIR जरूर दर्ज होती थी, रिपोर्ट जरूर वहां पे पुलिस में लोग करते थे और बकायदा नाम के साथ अक्सर रिपोर्ट दर्ज होती थी। क्योंकि डाकू हमें चंद होते थे और मशहूर होते थे, लोग पहचान भी लेते थे अक्सर। वैसे तो हम लोग मडासा मार के जाते थे, मगर फिर भी किसी ना किसी हवाले से लोग जाके तो अपना ख्याल अपनी सोच बता देते थे कि फलां बंदा हमें लुट के चला गया। और आज आलम ये है FIR दर्ज ही नहीं होती, FIR के दौड़े फिरते हैं। अव्वल तो बेचारे लोग जाते ही नहीं है थाने, उनको पता है ना किसी ने सुनना है ना किसी ने वहां पे इज्जत करनी है, बेइज्जत भी हो के आएंगे और FIR भी नहीं दर्ज। FIR के इंदराज का मामला ये है कि हम हर रोज अपने मोहल्ले में सुनते हैं कि गिरदो नवा में कहीं ना कहीं डकैती की वारदात हो गई है, लेकिन जब पुलिस के दिए हुए अदादोशुमार पर नजर डालते हैं तो हंसी निकल जाती है। क्यों जी? मतलब पंजाब पुलिस के अदादोशुमार ये बता रहे हैं कि 10 महीनों में पिछले 760 वारदातें हुई हैं पंजाब में और सिंध में 820 वारदातें हुई। यानी पूरे पंजाब में कितनी वारदात? 10 महीनों में 760, सिंध में 820। 100 का फर्क है जी, कोई बात नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है 2 दिन में होने वाली वारदातों की तादाद है। अब जरा आप इसी बात से अंदाजा लगाएं ना कि क्यों ना ये डकैती फैले और क्यों ना ये लड़के अन्यवाह दंदनाते फिरे। अच्छा, दूसरी बड़ी वजह इन वारदातों में इजाफे की हमारे माशरे में तेजी से बढ़ती हुई बेसब्री और शॉर्टकट की तलाश है। ये असल वजह है। अक्सर लोग अब यही बताते हैं कि ये बच्चे बेसब्रे हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। को BA में से फेल हो जाए तो वो वारदातें शुरू कर देता है बजाय दूसरी दफा इम्तिहान देने के। अगर को BA पास कर ले उसे नौकरी ना मिले तो वो वारदातें शुरू कर देता है। और खुदा के लिए मेहनत करो जुनैद साहब, मैंने तो अब अल्लाह से तौबा कर ली हुई है, ये तो मैं आपकी वजह से दोबारा वर्दी पहन के आया। वर्दी, वरना आप यकीन करें मैंने जिस दिन सोचा था ना कि यार लानत है ऐसे काम पे, मैं किस काम में पड़ा हुआ, वो खानी तो वही 2 रोटियां, किस लिए मैं लोगों की बददुआएं भी ले रहा हूँ और लुटमार भी कर रहा हूँ और हराम भी खा रहा हूँ। जुनैद साहब आप इससे ये पूछे, जब डकैतियां करनी छोड़ दी हैं, डाके मारने छोड़ दिए, तो फिर वर्दी क्यों संभाल के रखी हुई है? और भाई मैं ये ड्रामे वालों को शूटिंग के लिए किराए पे देता हूँ। ये पूछ लो इनसे, इन्होंने मुझे पिछले हफ्ते बुलाया था शो में, मैंने इन्हें साफ इनकार कर दिया था कि भाई जी वर्दी मेरी शफकत चीमा किराए पे ले गया। इस हफ्ते वर्दी मेली थी, मैं आ गया। अच्छा, एक मसला ये भी है कि इन लोगों को गुनाह सवाब का एहसास नहीं है, पुलिस या कानून का डर नहीं है, माँ बाप की रोक टोक नहीं है। अब इस बंदे की कहानी सुनी है कि इसने ये रास्ता क्यों चुना? बताओ जरा, बताओ। और बस क्या बताऊं जुनैद साहब, मेरे कजन ने 28,000 रुपए का फोन लिया, वालिद साहब उनके सरकारी मुलाजिम थे, अन्ना पैसा था उनके पास, बस वो घर आके जब मोबाइल मेरे सामने करे बस सीने में आग लगती थी उस मोबाइल को देख के। मैंने एक दिन अब्बा जी को कहा, अब्बा जी मुझे भी ये मोबाइल ले दें। अब्बा जी मेरे माड़े हाथ में वो लेके दे नहीं सकते थे। वही मोबाइल सेम टू सेम मैंने एक आदमी के हाथ में देखा और वह छीन के बस दुड़की लगा दी। उसके बाद फिर चल सोचा। क्यों जी? जी जुनैद साहब, मेरी स्टोरी भी कुछ इसी तरह ही है। मैं बकवास न कर, तेरी स्टोरी अलग है। ये तो जुनैद साहब महल्ले के बच्चों से कभी टाफियां छीन लेता था, कभी खखड़ पूड़ा छीन लेना, किसी की दाल सेवियां उठा के दौड़ जाना, किसी की कुल्फी पकड़ के दौड़ लगा देनी, मक्खियां इसके पीछे होनी, हाला हुई होनी। बस उन मक्खियों से तंग आके ये गरीब गलियों से निकल के अमीर इलाकों में घुस गया। नहीं डाकू चाचू नहीं, मेरी स्टोरी कुछ इस तरह है। किस तरह है तेरी स्टोरी वारदाती है भतीजे? वेला नकारा ना कम ना कार यारा ना वेला फिरना सा। एक दिन मैं अपने दोस्त नाल बाजार च जा रहा ते एक दुकानदार ने अपना पर्स कढ़ के ते काउंटर ते रखिया ते पिछों कोई चीज फड़न लग पे। दोस्त मेरे ने भी शुक्ल शुक्ल च किया, चुक ला।
ਮੈਂ ਚੁਗਲ ਚੁਗਲ ਜੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ 15,000 ਉੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ 15,000 ਉਹ ਚੋਂ 6,500 ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਲਓ 6,500 ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਲੋ ਉਹ 6,500 ਦਾ ਫਿਗਰ ਪੈ ਗਿਆ 8,500 ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਗਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ 6,500 ਤੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ 6,500 ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈ 6,500 ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ असल बात ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ये देखे ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जुनैद साहब वारदातें फैलने की कि जो घर वाले हैं ना वो या तो आंखें बंद कर देते हैं या फिर और सपोर्ट करते हैं हौसला अफजाई करते हैं हमारे दौर में ऐसा नहीं था हमारे दौर में अगर कोई पहली दूसरी वारदात का पता चलता था घर वालों को तो वो घर से निकाल देते थे बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो हुकूमत कानून पुलिस के अलावा माशरा खुद भी जराइम में इस इजाफे का जिम्मेदार है हाँ जी हाँ जी ਹਾਂਜੀ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂ ਹੀ ਸਾਂ ओए, पुलिस आई है। ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਉਸਤਾਦ नाज़रीन यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा अच्छा हजूर हमारे आज के शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हिंदुस्तान से आए हुए खास मेहमान उनसे तुम्हारी मुलाकात करवानी है मैंने अच्छा किधर है वो आगे ये जनाब धन्य हो। ये खुद को वहाँ के वजीर आजम मोदी साहब के खबरी या मुखबर कह रहे हैं अच्छा मैं तो अपने प्रधानमंत्री साहब का प्रेम पत्र आपके लिए लेके आया हूँ। मोहब्बत का पैगाम लाए हैं जी क्या बात है ये जो पानी बंद हमारा कर रहे हैं ये मोहब्बत का पैगाम है ये जो जंग की तड़ियां लगा रहे हैं ये है मोहब्बत का पैगाम उधर से हमारे एक्टरों को डरा धमका के आपके इंतहा पसंद हिंदू दौड़ा रहे हैं ये मोहब्बत है आपकी आए तो शरीफ रखे धन्य हो। बड़ा दिल है यार तुम्हारा फिर भी तुम कह रहे हो मेजबानी के आदाब पूरे कर रहे हो तुम कह रहे हो तशरीफ रखे जी तशरीफ रखे धन्य हो। मैं कहना अपनी गल कर ते बन्ने हो अजीजी इनका एतबार नहीं है ये एतबार वाले लोग नहीं है फिक्र करो कर लेते हैं बात इनसे हाँ जी क्या हाल है जी कोई हाल नहीं है। अभी जब हम आपके स्टूडियो में पधारे हैं तो आपके सिक्योरिटी गार्ड ने मुंह से कहा ठा हमारी जान निकल गई। ठा यार ना उनको पधारो क्या कर रहे हैं अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो आपके वजीर आज़म साहब ने तकरीर की है कुछ दिन पहले कि हमसे मुकाबला करना है तो अपनी हुकूमत से कहें कि बेरोजगारी मुकाबले का मुकाबला करें हमसे मुकाबला करना है तो गुर्बत के खात्मे का मुकाबला करें हम बताते हैं उन्होंने जो प्रेम पत्र दिया था वो ये बोले थे कि अगर जंग लड़नी है तो आओ गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ते हैं जहालत के खिलाफ जंग लड़ते हैं जो नौ मालूद बच्चे फौत हो जाते हैं उनके लिए जद्दोजहद करते हैं। तो बेरोजगारी जहालत और गुर्बत के खात्मे के खिलाफ जंग लड़ने से इनकार कौन कर रहा है इसकी अहमियत जितनी हमारे लिए है पाकिस्तानी अवाम के लिए है उससे ज्यादा तो हिंदुस्तानी अवाम के लिए इसकी अहमियत है। मैं वही तो हैरान हुआ उनकी तकरीर सुन के बल्कि इतने दिन से सटपटा रहा हूं कि कहीं मोदी मिल जाए अगर मुझे कहीं अव्वल तो वो मिलेगा नहीं मुझे उसको पता है ये कौन है कहीं मिल जाए तो मैं उससे पूछूं कि तुम मुकाबले की कौन सी तड़ियां लगा रहे हो सारी दुनिया जानती है कि जितनी गुर्बत तुम्हारे यहाँ है अल्लाह माफ करे तौबा इस्तगफार पता नहीं कितने % आबादी तुम्हारी अभी तक सड़कों में खुले आसमान तले सोती लेकिन उस दिन मोदी साहब का जो अंदाजे तखातुब था वो बिल्कुल यूं शो कर रहे थे कि जैसे स्विट्जरलैंड के वजीर हाँ बिल्कुल जैसे वो स्विट्जरलैंड के वजीर आजम है और अपने मुकाबले पे वो कोई इथोपिया के अवाम को पैगाम दे रहे हैं जो गुर्बत और जहालत की चक्की में पेश रहे हैं उनकी खिदमत में हमने सिर्फ इतना अर्ज करना है कि हम तो अपने हुक्मरानों से पूछते ही रहते हैं हमारे तो हर दूसरे बात में हुजूर वाला अपने हुक्मरान अपने सियासतदान होते हैं हमारे मुखातिब जो है लेकिन हिंदुस्तानी अवाम को मोदी का गिरेबान पकड़ के भी तो पूछना चाहिए कि आप पाकिस्तान को गुर्बत के ताने दे रहे हैं और गुर्बत के खिलाफ जंग की बात कर रहे हैं आदादो शुमार पे भी तो नजर डाल लें ये किसी पाकिस्तानी जो सहाफी है उसकी रिपोर्ट नहीं है ये किसी पाकिस्तान के नशरियाती इदारे की रिपोर्ट नहीं है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बता रही है कि हिंदुस्तान में
جو خط غربت ہے, غربت سے نیچے جو لوگ رہنے والے ہیں, ان کی تعداد 26 کروڑ ہے. 26 کروڑ. پاکستان میں یہ تعداد 1 کروڑ 10 لاکھ ہے. اب لامحالہ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی آبادی زیادہ ہے, تو آبادی کا تناسب بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ غربت کی شرح 21.3 ہے, جبکہ پاکستان میں یہ شرح 8.3 ہے. یہ 8.3 بھی شرمناک ہے, لیکن آپ اس سے 3 گنا زیادہ شرمناک سٹیج پہ کھڑے ہیں. اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے, دوسروں کو کہہ رہے ہیں ہم سے مقابلہ کر لے. ہم سے کس لیے آپ مقابلہ کر رہے ہیں؟ ہمارے ذہن میں اللہ کے فضل سے اور ملک ہیں جو سچی مچی ترقی یافتہ ہے. ہم کس لیے آپ سے مقابلہ کریں؟ آپ اپنا مقابلہ اپنے آپ سے ہی لڑیں, چونکہ جتنی غربت اور جتنی اللہ معاف کرے بیروزگاری آپ کے ملک میں ہے, میرا خیال ہے دنیا میں کہیں نہیں. سر شانت ہو جائیں, شانت ہو جائیں. انہوں نے سبھاؤ دیا ہے کہ آؤ بے روزگاری کے خلاف مل کے چلیں ہم. ہاں تو مل کے چلنے کی بات کر رہے ہیں نا. ہندوستان میں بیروزگاری کی شرح جو ہے وہ 7.6 ہے, پاکستان میں 5.6 ہے. اب سناؤ, یہ جو آپ نے بھی شانت ہو جائیں یا اب اٹھ کے شانت ہو؟ دھیرج ڈاک بابو, یہ تنے خفیہ رپورٹیں کون دیتا ہے؟ یہ خفیہ رپورٹیں کون دیتا ہے یہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے آپ یہ فرمائیے کہ یہ دھیرج اور شانت ہونے کا سبق آپ کو صرف پاکستان کے لیے رٹایا گیا ہے. ایک پاسے ہمیں تڑیاں لگاتے ہیں اور دوسری طرف سے پھر فٹاٹ پاسا پرت لیتے ہیں. بڑا یار یہ چلاک آدمی ہے. دیکھو نا یار کس طرح ہائپ کریٹ کر کے, کس طرح ایک ٹینشن کریٹ کر کے, تو پھر کدھر کو جا رہا ہے, اور پاکستانی عوام کو بھی اپنا ہمدرد بنانا چاہتا ہے. بغل میں چھری منہ میں رام. ایگزیکٹلی. ہمیں اپنی کمزوریوں کا بہت اچھی طرح احساس ہے. ہم اپنے حکمرانوں سے بار بار پوچھتے ہیں, جس میدان میں ہم پیچھے ہیں, ہم بہت سارے میدانوں میں پیچھے, ہم تو بار بار اس کا ذکر کر چکے ہیں, لیکن آپ اس بات کو ایک دوسرا رخ دینے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں, یہ میری سمجھ سے بالا تر. ہاں ہم شرح خواندگی کے حوالے سے آپ سے قدرے پیچھے ہیں. آپ 68% پہ کھڑے ہو, ہم 61% پہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے زیادہ شرم کی بات ہے. لیکن جو فرق ہے, جو کسی ملک کی جو ترقی ہے اس کا سب سے بڑا انڈیکیٹر جو ہے وہ شرح غربت ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ شرح خواندگی ہے. شرح غربت میں آپ ہم سے 3 گنا نیچے ہو. یار ایک لفظ میں تمہیں مودی کا بتا دیتا ہوں کہ گرگٹ ہے. یہ گرگٹ ہر لمحے رنگ بدلتا ہے, اور گرگٹ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی گرگٹ ہوتا ہے, رنگ بدلنے والا. انسان اگر گرگٹ بن جائے نا تو اسے خود بڑا نقصان ہوتا ہے. میری طرف سے جا کے اس کا مودی کو پہلی بات تو یہ کہنا کہ بڑا طرح میلے چ مندریاں بیچنے والے بھائی ارگا منہ. دوسری بات اس کو یہ کہنا کہ تم گرگٹ ہو, اور تمہیں خود نقصان ہوگا تمہاری اس گرگٹائزیشن کا. اور میری طرف سے ان کو یہ جا کے پیغام دے دینا کہ انہوں نے جن اقتصادی اشاریوں کا اپنی تقریر میں ذکر کیا ان کا جواب تو ہم نے دے دیا ہے, لیکن کچھ باتوں کی طرف ہم بھی ان کی توجہ دلانا چاہتے ہیں. اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کرائم ریٹ میں اس وقت ہندوستان دنیا میں 3رے نمبر پہ ہے, اور پاکستان کا نمبر کہیں جا کے 22ویں پہ آتا ہے, جو 12 لمحہ فکری ہے, لیکن ہندوستان کے لیے زیادہ ہے. میں کہتا ہوں جی کہ باقاعدہ دہشت گرد بندہ ہے یہ, اور اس نے ملک کو بھی اسی ٹریک پہ ڈال لی. اور ہندوستان میں مہنگائی کی شرح 5.1% ہے, پاکستان میں قدرے کم ہے 4.6% ہے. دیکھو یہ رہا, ہر طرف سے تو تمہارا نصف وجہ ہوا ہم سے کہیں زیادہ. اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اپنے گھر چولہا نہیں بڑھتا تو دوسری دی ہانڈی پہ کاؤنٹر پہ. ہمیں لگتا ہے کہ آپ امن کی بھاشا نہیں سمجھ رہے. ہمارے پردھان منتری نے ٹھیک بولا تھا اسی تقریر میں کہ اصلی والی اگر جنگ لڑنی ہے تو وہ بھی لڑ لیں. چلو اس حوالے سے بھی اپنے جا کے پردھان منتری کو یہ بتانا کہ آپ کلے ہی اب ایٹمی پاور نہیں ہے. ہم بھی اپنے ایٹمی پلانٹ میں ایٹم بم بھی بناتے ہیں, کوئی دعانے نہیں بناتے, اور اللہ کے فضل سے اس حوالے سے بھی ہم آپ سے کہیں بہتر ہیں. یہ جو اس حوالے سے جو ریسرچ کا معتبر ترین ادارہ دنیا میں وہ سپری ہے, سویڈن کا. اس کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ نیوکلیئر وار ہیڈز کی تعداد پاکستان کے پاس 110 سے 120 کے درمیان ہے, اور ہندوستان کے پاس 90 سے 100 ہے. دھنے ہو, بولتے نہیں اب انے ہو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا بھائی جان, بد تہذیبیوں میں میرے ذہن میں ایک کافی دنوں سے ایک بات کلبلا رہی تھی, اور میرا ذاتی تجربہ بھی مجھے ہوا ہے کہ لوگ پارکس میں اب اپنے پالتو جانور ساتھ لے جاتے ہیں,
वॉक करने के लिए। अच्छा, अब जिसका वो पालतू जानवर है उसको तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपने कुत्ते को साथ लेके वो टहल रहा है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो कुत्ते से डरते हैं, जिनकी जान जाती है, मुझ जैसे कि, उसकी तो जिंदगी अजाब में हो जाती है, उसकी तो सैर वॉक आपने बर्बाद कर दी ना। और बड़ी अक्सर बदतमीजी कुत्ता है। लेके वो वाला जाते हैं जिसका मुंह ही डरावना होता है। एक तो सादा कुत्ता होता है ना बेल बॉटम, वो तो आराम से जा रहा होता है बेचारा, इधर उधर देखता भी नहीं था। कुत्ता हमेशा वो लेके साथ जाते हैं लोग जो दूसरों को दिखाना होता है कि कैसा कुत्ता रखे। कुत्ते का मुंह या कसौन जैसा होता है, या उसकी आंखें बड़ी डरावनी होती हैं, शोले निकल रहे होते हैं, बंदा देख के डर जाता है कि यार इसने लाइमन मेरा हाल चाल पूछ ले। ऐसे ही कुत्ते के बारे में पेत्रस ने कहा था ना, कुत्ता गोया कि बहुत ही कुत्ता। ओए ओए। हाँ जी, ऐसे कुत्ते की वजह से मैं खुद बेइज्जती करा बैठा हूँ पार्क में। हाँ, मैं पार्क में सैर कर रहा था ना, तो एकदम मेरी नजर पड़ी है कुत्ते के ऊपर, मैं डर के ऐसे पर एक बाबा जी जा रहे थे, मैं उनमें जा बजा। बाबा जी ने ब्रीक सोटी पकड़ी हुई थी, उन्होंने कहा ये मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम्हें माफ कर रहा हूँ, दौड़ जाओ। बाबा जी ने कहा है कि अजीजी तो मेरे क्लास फेलो ना होते, मैं बहुत फंटी लगा दी। हाँ जी, मैं और बाबा जी इकट्ठे तकाफ बैठे थे। तो तकाफ में होता है ना कि एक बुजुर्ग और एक यंग, एक बुजुर्ग और एक यंग इकट्ठे तकाफ बैठते हैं ताकि जरा बुजुर्गों का ख्याल रखा जाए। तो अजीजी साहब, फिर आपने उनका ख्याल रखा या उन्होंने आपका ख्याल रखा? यार, बातहीबियों का जिक्र हो रहा है तो बातहीबी मना है करनी। एक और बातहीबी जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, लिफ्ट के अंदर ना जी, कहीं भी किसी बिल्डिंग में या किसी शॉपिंग मॉल में लगी हो लिफ्ट, तो उसमें खामखा कितने बंदे घुस जाते हैं। अगर वहां पे 6 बंदों की गुंजाइश है तो वहां पे 9 खड़े हो जाते हैं। आखिर जो बेचारी लिफ्ट है वो टू 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 करना शुरू हो जाती है, फिर नीचे नहीं उतरते, एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि तू पहले उतर। लिफ्ट असल में टू टू नहीं कर रही होती, थोड़ी सी गाली दे रही होती है। ये भी ठीक है, होता है कई लिफ्टें बदतमीज भी होती है, आगे से गाली गलौज शुरू कर देती है। इस बात का हॉस्पिटल्स की लिफ्ट में खास तौर पे ख्याल करना चाहिए, और जो पेशेंट्स हैं खास तौर पे जो स्ट्रेचर अंदर लेके जाते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। वहां पर भी हम लोग जो है वो नफसा नफसी पड़ी होती है कि मैंने अंदर घुसना है, मैंने पहले जाना। अब बिल्कुल मरीजों का ख्याल करना चाहिए अस्पताल की लिफ्टों में, वरना उनकी बददुआ से बंदा खुद भी मरीज बन सकता है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। एक और बात ये भी मैं सुनाना चाहता हूँ, जो मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाई, मैं शशदर रह गया। कहता यार, जहाज में आके मैं आ रहा था दुबई से, तो खड़ा हुआ है जहाज, तो मैं भी अपना बैग पकड़ के नीचे उतरने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। तो पीछे से एक बंदा मेरा मोढ़ा खड़का के कहता कि भाई जी जरा राह देना। कहता मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैंने कहा सारी लाइन खड़ी है, दरवाजा खुलेगा, सबने उतरने का। तो मैंने गुस्से में उससे कहा कि भाई जी मैं भी थल्ले ही उतरना है, मैं जहाज च काम नहीं करना। तो लाइन में लगे हुए भी कुछ लोग तड़फ रहे होते हैं कि लाइन काट के कहीं आगे चले जाए, इसलिए जब आप क्यू में कहीं खड़े होते हैं तो सब्र से तहम्मुल से काम, या बंदों की लाइन हो या गाड़ियों की लाइन हो, दोनों चीजों को मैं काट कर आगे निकलने की पड़ी होती। अच्छा जी, एक और बात है ये भी, बल्कि मैं बात है ये भी से भी उसे को अगली स्टेज का दर्जा देता हूँ। ये शॉर्ट्स पहन के तो लड़के जो हैं या मर्द हजरात अक्सर बाहर निकल आते थे, पहले जिम शिम जाते या ग्राउंड में, चलो वहां तक भी बंदा बर्दाश्त करता रहा। अब तो अक्सर पब्लिक प्लेसेस में, ये मॉलों में, इधर उधर बंदे जो है ना जी, वो शॉर्ट्स पहन के फिर रहे होते हैं। वहां पे फैमिलीज फिर रही होती हैं, खवातीन फिर रही होती हैं, को थोड़ा सा मेरा ख्याल है ख्याल करना चाहिए, को हया करनी। ऐसे नौजवान मेरा ख्याल ये समझते हैं कि जिस क्लास से उनका अपना ताल्लुक है, तो पब्लिक प्लेसेस पे भी अक्सरियत उसी क्लास की होगी, जो बिल्कुल गलत सोच है मेरा ख्याल। ये सोच वैसे फैशन के हवाले से भी गलत है, और इस हवाले से भी गलत है कि मैं खूबसूरत लगता हूं। क्योंकि अक्सर शॉर्ट पहन के वही लड़के बाहर निकलते हैं जिनके बैरंग जैसे गोडे होते हैं। यार बस करो, इस चीज का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, चलो छोड़ देते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कश्मीर
भारत का अटूट अंग है। पाकिस्तान इसके ख्वाब देखना छोड़ दे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की वही पुरानी रट। वाह जी वाह सुषमा स्वराज साहबा, क्या आपने लफ्ज पकड़ा हुआ है, अटूट अंग। भारत का अटूट अंग है कश्मीर। कह कह के भारत के अपने अंग अंग में अटूट निकल आए हुए। अपने इनके मुल्क के अंदर 47 तहरीकें चल रही हैं, उसको खत्म करने की बजाय या उनकी तरफ ध्यान देने की बजाय कश्मीर अटूट अंग बनाया हुआ है। इनको इस लफ्ज का मतलब ही नहीं पता अटूट अंग होता क्या है, वरना इसको अक़वाम मुत्तहिदा में ना दे के जाए खुद ये लोग। ये सुषमा वही लड़की है ना जो इधर लाहौर के धर्मपुरे में रहती रही है। जी जी। ये उधर के बुजुर्गों ने मुझे बताया कि इधर भी ये इसी तरह की हरकतें करती थी। धर्मपुरे के एक करियाने की दुकान पे इसका अटूट अंग चलता था। अरे वो दुकान वाला बेचारा आक जाता था कि बीबी बस करो, इतना टूटंग इतना टूटंग। मैं भी आखिर इंसान हूं, मैं कहां से इतना टूटंग दे दूं। अच्छा, टूटंग का मतलब उधार होता है? हाँ जी, ये कश्मीर भी हमारा उधार है ना इनके सर पे, जो हमें इन्होंने लुटाना है, हर नहीं लुटा रहे। अजीजी, अगर ये धर्मपुरा लाहौर रहती रही है सुषमा स्वराज, तो मैं ऐसे बात करूं, मैं मुगलपुरे रहता हूं। फायदा ही कोई नहीं तुम्हारी बात करने का। ऐसी औरतें बहुत तेज होती हैं, इनका तो अगर कहीं दूर दराज रिश्ता हो जाए ना तो रुखसती से 6 महीने पहले मोहल्ले में कमेटी डाल लेती, पैसे इकट्ठे कुट्ठे करके तो रुखसत हो जाती। बाद में वालिद बेचारा मोटी ऐनक लगा के मोहल्ले में शर्मिंदा फिर रहा होता। अच्छा जी, खबर सुने। जापान में फोन का इस्तेमाल किए बगैर 100 किलोमीटर तक कार चलाने वालों को तोहफे में 2 कप कॉफी देने का ऐलान। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। वाकई ये तो तोहफा देने वाली यही बात है। अब तो बंदा मिनट नहीं गुजारता फोन के बगैर जी। अगर ना भी बात करनी चाह रहे हो ना तो पैकेज ही ऐसे ऐसे अब निकल आए हुए हैं कि बंदा सोचता कि यार मेरे फ्री के मिनट जाया ना हो जाए, मैं बातें ही कर लूं थोड़ी सी। मन से जब से ये फोन निकल आया ना मोबाइल, उस वक्त से तो खामदों की उल्टा इतनी कम बख्ती आई हुई है। घर से निकलते हैं तो आधे मिनट बाद फोन आ जाता है, कहाँ पहुंचे हो। मैं तो गुस्से में एक स्कूटर वापस ले गया, मैं कहा जी यहाँ पहुंचा ऑर्डर करे। बस बस करो खुदा के वास्ते, अगर साइंस ने ये इजाद कर ही दी है तो इसकी जान छोड़ दो। हेलो, काले चने पका लू? मैंने कहा ना पका लो, मैंने तो चढ़ा भी दी है। भाई बंदा पूछे अगर तुमने चढ़ा ही लिए हुए हैं तो फिर फोन पे ये कहने की क्या जरूरत है, पका लूं? पका लू नहीं, नून गुन्ना काटो, वो कहती है पका लो। नून गुन्ना काटो अगर तो मेरा खुन्ना खुल जाए। मुझे तो घर से एक ही फोन आता है कि बहुत गर्मी है बाहर, एहतियात से जाइएगा। हाय हाय हाय, देखो यार वो हमारी बहन अभी इतनी एहतियात करती है तो ये हाल हो गया। अगर वो एहतियात छोड़ते तो फिर तो गौरी बेचारे को पहचानना मुश्किल हो जाए। मुझे तो जब भी फोन आया ना आपकी भाभी ने यही कहा है कि हांडी नीचे लग गई है, सालन बाजार से लेते आना। हाय हाय हाय, बाजार से सालन 2 ही सूरतों में आता है, या हांडी नीचे लग जाए या फिर खामद नीचे लग जाए। कई लोग बेचारे मर्सिडीज में सालन वाला शापर रख के जा रहे होते। एक दो दफा तो पाजनात को मर्सिडीज वालों ने खत भी लिखा। अच्छा जी, कि भाई जी जे सालन ही ढोना है तो गड्डी वापस कर, हम आपको कैरी डब्बा फ्री दे दे। उसमें सालन टो लिया करें, बेशक दे के रख लिया करें। अच्छा जी सुने, दुनिया के अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स की अहलिया ने तलाक का मुकदमा दर्ज करा दिया। 80 अरब डॉलर की रकम से 90% शेयर लेने का मुतालबा, और केस जीतने की सूरत में बिल गेट्स के पास 10 अरब डॉलर रह जाएंगे। ओए होए 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 होए, अल्लाह माफ करे, मैंने तो जब से ये खबर सुनी है अमान से मैं कानों का हाथ लगा रहा हूँ। देखो यार, दुनिया का अमीर तरीन आदमी और बीवी ने तलाक ली तो दावा दायर कर दिया है। अब सिर्फ 10 अरब डॉलर उसके पास रह जाएंगे, बाकी 90 अरब डॉलर बीवी ले जाएगी। क्या बेचारे का तमाशा लगेगा। बैंक वाले फोन करेंगे कि हजूर को अकाउंट ही दे, उसने कहना लिखो नंबर 0300 9746720, इस पे नंबर मिलाओ। औरत बोलेगी उसको अकाउंट का काम मैंने फोन करिएगा तो
चलो पहले बिल गेट अमीर था, अब बिल्ली गेट अमीर होगी। शाबाश है, वो बिल की वजह से उसको बिल्ली बना दिया। उसका नाम है मलिंडा गेट्स। ये मलिंगा की बहन है छोटी, और मलिंगा नहीं जिसके बालों को आग लगी हुई है। अच्छा देखो, नाम गेट्स है और बनाता विंडोज है। कंप्यूटर की विंडोज बना बना के पैसे कमा रहा है, देखो यार। वैसे अजीजी ये तलाक हुई क्यों? बाजी सारा दिन तो विंडोज पे बैठा रहता था। उसकी बीवी को शक हो गया कि ये विंडो खोल के कहीं हमसायों की किसी लड़की को तो नहीं देखता। शक जो है ना, ये घर जाड़ देता। वो बेशक कंप्यूटर की विंडो हो या घर की विंडो हो, बहुत खतरनाक होती है औरत के लिए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।